Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my very dear students. I am Miss Amna Zohra Qureshi, Assistant Professor of English, and we have done 8 poems. Now we are going to do short stories. We'll take a break for some time. Today we are going to study short story number 4, and its name is Breakfast. 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 This is British pronunciation of the word. Mostly students in Pakistan, they call it breakfast. So that is breakfast, right? So its pronunciation is breakfast. Okay. The name of the author of this short story is John Steinbeck. And John Steinbeck was born on 27th February 1902, and he died in December 20th, 1968. And he was an American author, right? American author. And in 1962, he was given Nobel Prize in Literature. And he is famous for his realistic, imaginative writings and combining is the two sympathetic humor and keen social perception. बहुत sympathetic सा इसका जो है way of presenting things है. Okay, in breakfast there are some characters and name of the characters are not given. There is an old man, एक बूढ़ा आदमी है, a young man, a woman, a baby, nursing baby है, ठीक है? Writing himself, or we can say the narrator of the story. So there is not any name given in the short story. कोई नाम नहीं दिया गया. Okay जी. What is the background of the story? For better understanding of the story, why the writer is liking them so much or appreciating them so much or admiring them so much, what is the reason behind them? First of all, we must know the background of the story. It was written in the background of Great Depression of 1930s in America. अमेरिका में स्लम्प आया था, बहुत बड़ा कसाद बाजारी होती है जिसमें जो होती है मनी की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है और जो है प्राइस हाइक बहुत ज्यादा हो जाती है. सो इट वाज वर्स्ट इन डिजास्टर्स डाउनफॉल इन ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड वर्क. कोई चीज ना इंडस्ट्री ना कॉमर्स ना कोई ट्रेड कुछ नहीं चल रहा था. जस्ट एवरीथिंग जस्ट केम टू एन एंड. सो देयर वाज क्या गया था? अनएम्प्लॉयमेंट, hunger and unrest. People were so much unrest because they did not know what is going to happen with them, and there was unemployment. No one had any sort of petty job even, and there was so much hunger all the time. So this was the background. In that situation, in that condition, um, in that depression or in that time of 1930s in America, the writer met a family, right? And उसमें वहां पे उन्होंने कैसे उसे ट्रीट किया, क्या किया, वो तो हम डिटेल से स्टोरी पढ़ के देखेंगे. सो द टाइटल ब्रेकफास्ट जो है इसमें क्या है? दिस इज अबाउट मेमोरी, मेमोरी ऑफ ब्रेकफास्ट विद द फैमिली of a cotton picker, and it is very nostalgic होती है when the person is thinking about the past. और उसकी बड़ी वार्म सी उसकी यादें हैं. जब वो कभी वहां पे गया और कैसे वो मिला, कैसे उन्होंने ट्रीट किया, all these things, he is nostalgic and he is missing them very much. So this is his real life experience. This is not a story, कोई fiction नहीं उसने बनाई. This really happened with him. That's why he had a close connection with it, with his heart. So what happened in that, a poor family जिनके पास खुद भी खाने को नहीं है, they invited him on breakfast. So the poet connected with writer's experience of life. So there is his personal experience. That's why he connects with that and he shares that thing. Moral we'll try to find after reading the text, and then in the end I'll give you the question as well. So let's come to the text of this short story. Okay, as the name is Breakfast by John Steinbeck.
This thing fills me with pleasure. पहली चीज ही हैप्पीनेस है, नॉस्टैल्जिक है. The writer is nostalgic. I don't know why. मुझे नहीं मालूम क्यों. I can see it in the smallest details. So he was so happy with that meeting that he remembers all the smallest detail of that meeting. वो जो meeting उसकी हुई ना, उसकी हर बात उसे याद है because that things gave him pleasure उसको मिलता है, happiness मिलती है. I find myself recalling it again and again and again. That's why he recalls it again and again all the time, because he misses them and he wants those type of people in his life again, each time bringing more detail out of sunken memory. Means sunken, जो बिल्कुल डूबी हुई उसकी मेमोरी है, हिडन मेमोरी है, या पीछे लॉस्ट हो जाती मेमोरी हो जाती है, उसमें वो डिग करते हैं और याद करते हैं उसको बार बार, हर दफा उसे नई बात याद आती है. समटाइम्स व्हेन यू आर सो हैप्पी, और वो मेमोरी आपके माइंड में क्लिक हो जाती है, क्लिंग हो जाती है और हमेशा आपके साथ रहती है. व्हेन एवर यू थिंक अबाउट इट, यू रिमेंबर समथिंग डिफरेंट ऑल द टाइम. So remembering brings the curious warm player. हर दफा उसे खुशी होती है. This is what is the real happiness. This is what is required in a person's life in this materialistic world. कि इंसान किसी ऐसे शख्स से मिले, ऐसी फैमिली से मिले जिसकी याद आपको हमेशा खुशी दे. So there is again a nostalgic है इसमें बहुत राइटर. And now in the next paragraph he'll talk about the countryside. Countryside में जो early morning है, वो ऐसे घूमता घुमाता वहां पे निकल गया और वहां पे उसने क्या देखा. He has described that in minute details. It was very early in the morning. The eastern mountains were black blue, but behind them the light stood up, faintly colored at the mountain rims with washed red, growing colder, grayer and darker as it went up and overhead, until at a place near the west it merged in with प्योर नाइट. अब उसने जो है सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह का मंजर उसने बयान किया है, जब जो है सूरज तलू हो रहा होता है और बिल्कुल मुख्तलिफ रंग मिल रहे होते हैं और माउंटेन्स हैं और कंट्री साइड है. इट इज अ सो ब्यूटिफुल कलर्स एंड सो ब्यूटिफुल सीन इज प्रेजेंटेड by the writer. So there is detailed description of the scene, and it was cold, not painfully so, but cold enough so that I rubbed my hand and shoved them into my pocket. अब जो है उसने जो है, बहुत ठंड थी और लेकिन जाहिर बात है वेस्ट की ठंड तो बहुत ज्यादा होती है, तो उसने क्या किया, अपने हाथ भी रगड़े और उसने पॉकेट्स में डाल लिया और अपने जो शोल्डर्स थे उसके ऊपर जो कॉलर है उसको भी ऊपर कर लिया और मंजर ये बयान किया गया है. विल नॉट रीड दैट पैराग्राफ. नेक्स्ट हम आते हैं, हुआ क्या वहाँ पे. वहाँ पे एक टेंट है, टेंट लगा हुआ है और वहाँ पे खातून है और वो टूटा हुआ सा एक जो है चूल्हा पड़ा हुआ है जिसमें वो काम कर रही है, धुआं निकल रहा है उससे बाहर. ठीक है, तो इसमें हम ये पॉइंट्स देखेंगे, सिंप्लिसिटी, परफेक्शन, कंटेंटमेंट. ठीक है. आई सॉ यंग वुमन बिसाइड द स्टोव, रियली गर्ल. ठीक है, यंग गर्ल थी वो उसने देखा स्टोव के पास, चूल्हे के पास देखा है. शी वॉज ड्रेस्ड इन फेडेड कॉटन. अब इनके ड्रेसेस का भी हम कंपैरिजन करेंगे कि उसने ड्रेस कैसा पहना हुआ है. उसने कोई फैंसी ड्रेस नहीं पहना हुआ, फेडेड, बिल्कुल रंग उड़ा हुआ है कपड़ों का, ऐसे उसने पहने हुए. Skirt and waist. As I came close, I saw that she carried a baby in a cooked arm, and the baby was nursing its head under her waist at the cold. A mother जो है, she is nursing the baby, and she is what she is doing. She's the mother, and she is doing, but they did not interfere with the mother's work. बच्चा जो है वो नर्सिंग भी करा रही है और साथ में जो है काम भी कर रही, but it does not matter at all. It did not interfere with the mother's work, nor with the light, quick gracefulness of movement. So there was a grace in her movement. एक रिदम था, ऐसे नहीं awkward से अंदाज से काम नहीं कर रही थी. ऐसे काम कर रही थी जैसे एक रिदम होता है. आपने पढ़ा होगा सिंधी वुमन. सिंधी वुमन में कितना वो उसको बताते हैं कि देयर इज ग्रेस, एलिगेंस इन हर गेट. तो वही मूवमेंट हम ग्रेसफुलनेस की इसमें भी देखते हैं, इस लड़की में भी. देयर वाज समथिंग वेरी प्रिसाइज एंड प्रैक्टिस इन हर मूवमेंट. द ऑरेंज फायर फ्लिकर्ड आउट ऑफ द क्रैक्स in the stove and threw dancing reflection on the tent. अब उसने जो है माइन्यूट डिटेल बता रहा है. अब वो बाहर खड़ा है अभी, ठीक है, टेंट से बाहर, टेंट से बाहर उसको नजर आ रहा है कि कैसे जो है वो चूल्हे से आग जल रही है और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ नजर आ रहा है, टेंट पे नजर आ रहा है.
सो अब नेक्स्ट जो है, अब मेन 2 कैरेक्टर्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। वो कौन होंगे? अब जैसे वो करीब किया तो उसने क्या देखा, यहाँ पे आते हैं। उसने देखा द टेंट फ्लैप्ड jerked up and a young man came out and older man followed। उसने देखा एक नौजवान निकला है टेंट से, उससे पीछे जो एक बूढ़ा आदमी निकला है, और उन्होंने पहना क्या हुआ था, they were dressed in new blue dungarees। डैंगरीज कहते हैं एक यूनिफॉर्म होता है वर्कर्स का, जो कि सुबह नीचे से ऊपर तक बंद होता है, और न्यू डैंगरीज हैं, ठीक है। कोट्स विद द ब्रास बटन शाइनिंग, दे वर शार्प फेस्ड मैन एंड लुक्ड मच अलाइक। दोनों एक जैसे मिलते जुलते थे। ये मच लुक्ड लाइक जो था, ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा था, किलर में पढ़ा था। अब उन्होंने डेंगरीज पहनी हुई, ठीक है। अभी उनकी अपीयरेंस ये पता चली। अब उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी? द यंग मैन हैड अ हार्ड स्टबल्ड बियर्ड, थोड़ी थोड़ी उसकी दाढ़ी थी यंग मैन की। एंड द ओल्डर हैड अ ग्रे स्टबल बियर्ड, और बूढ़े की ग्रे थी, व्हाइट हेयर हो गए होंगे। देयर हेड्स एंड फेसेस वर वेट, यानी सुबह सुबह का वक्त है, मुंह धो के निकले अभी वो बाहर। और इसके बाद जो है जब बाहर निकल के वो खड़े होते हैं तो उन्होंने क्या किया, दे टर्न मी एंड सॉ, उन्होंने मेरी तरफ मुड़े और मुझे देखा, मॉर्निंग, और उन्होंने गुड मॉर्निंग कहा। ये नहीं कहा कि क्या कौन आके खड़ा हो गया है, चोर तो नहीं है। No, didn't they didn't behave like that. They said morning, said the older man. His face was neither friendly nor unfriendly. क्यों? क्योंकि वो तो उनको जानता नहीं था, that's why। उसका जो था बड़ा क्या कह सकते हैं, indifferent सा उसका फेस था। Morning, said I said morning, said the young man. The water was slowly drying on the faces. उनके चेहरे से जो है वो खुश्क हो रहा था। अच्छा जी, अब हम देखते हैं उस लड़की अंदर काम कर रही है, उसको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। शी सेट द टेबल, क्या किया, शी सेट 10 कप्स ऑन अ बिग पैकिंग बॉक्स। एक बड़ा सा संदूक है, संदूक को उन्होंने टेबल बनाया हुआ है, और उसके ऊपर उसने छोटे छोटे कप्स रख दिए हैं, ठीक है। सेट 10 प्लेट्स रखी हैं, नाइफ्स रखी हैं, फॉक्स आउट देयर, एंड शी स्कूप्ड फ्राइड बेकन एंड डीप ग्रीस, सब उसने जो है वहां पे रख दिया, जो भी उसने खाना बनाया हुआ था। और फिर उसके बाद जो है शी ओपन द रस्टी ओवन डोर एंड टुक आउट अ स्क्वायर पैन फुल ऑफ हाई बिग बिस्किट्स। बिस्किट्स निकाले हैं, बेकन बनाया हुआ है, और साथ में चाय। ये उसने सारा सेट कर दिया टेबल। When the smell of that hot bread came, both the men inhaled deeply। जैसे बड़ा होता है ना, मजे की खुशबू आ रही है तो हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि इतना मजे की अरोमा है और खाना आज बहुत मजे का होगा। The young man said softly, उसने कहा Christ, मतलब उसे शुक्र अदा किया है। So अब उनको वो जानते भी नहीं है एक दूसरे को, ठीक है। अब ये राइटर वहां पे क्या है, ही डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट देम एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। लेकिन द ओल्डर मैन, सॉरी द एल्डर मैन टर्न टू मी, हैड योर ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता किया? नो, नहीं। वेल सिट डाउन विद अस, और उसने उसे इनवाइट किया। सो दिस इज द सीन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी किसे कहते हैं? हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, किसको कहते हैं? मेहमान नवाजी को। वेल सिट डाउन विद अस, उसने कहा आए हमारे साथ बैठे, नाश्ता करें। That was the signal. We went to the packing case and squatted, अलती पालती मार के नीचे सारे बैठ के हैं, और नीचे दरमियान में संदूक है। Around it and your young man asked, picking cotton, कि उसने कहा पिकिंग कॉटन, कॉटन पिक करोगे? नो, नहीं। अब ये डिप्रेशन किस चीज का है? 1930s का, जब मैंने बताया ट्रेड भी नहीं है, कोई जॉब्स भी नहीं है, कोई काम नहीं था, उसमें भी उसने ऑफर किया। और उसने क्या कहा, वी हैड 12 days, दे आर हैप्पी, they share their happiness with other people, and that's why they say that they have been working cotton picking for the 12 days. And the young man is happy with that thing. The girl spoke from the stove, they even got new clothes. She did not complain, किसी के मुंह के ऊपर कोई शिकायत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। शी इज हैप्पी इवन दो हर ड्रेस इज फेडेड। अब मैंने वो वर्ड अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है कि फेडेड ड्रेस है, उसने ये नहीं कहा कि मुझे मिले नहीं कपड़े। शी इज हैप्पी विद द हैप्पीनेस ऑफ द फैमिली। सो शेयरिंग है, केयरिंग है, लव है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एंड दे बोथ स्माइल्ड अ लिटिल, दोनों खुश हुए हैं, ठीक है। एवरीवन इज हैप्पी एंड दे एट अ लॉट। और कैसे उन्होंने खाया, वी फिल्ड आवर प्लेट्स, पोर्ड, सारा खा रहे हैं, बार बार पेट भर के उन्होंने खाया। तो ओल्ड मैन फिल्ड हिज माउथ फुल एंड च्यूड एंड च्यूड एंड swallowed। बूढ़े आदमी ने मतलब दे आर सो हैप्पी, मतलब उन्होंने अपनी भूख के मुताबिक खूब खाया।
And then he said, God Almighty, it is good. और उन्होंने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया. They are very thankful to God. The sense of gratitude gives you a sense of contentment, a sense of happiness, a sense of क्या कहते हैं, आपको सुकून मिल जाता है. And filled his mouth again. The young man said, we have been eating good for 12 days. उनके पास हमेशा से अच्छा खाना नहीं था. उनके पास कब खाना हुआ अच्छा, सिर्फ 12 दिन हुए. But they are so happy with that thing and they are so thankful and they never complained of all those days when they did not have enough for their family and all that. Okay, they ate frantically and they refilled their plates और फिर उसके बाद चाय बार बार पी. और उसके बाद जो है then the two men threw the ground, और फिर कप जो भी बच गया, जो बीच में नीचे पत्ती रह जाती वो फेंकी, और फिर उसके बाद जो है चाय पी के उठे हैं. Together they stood up together, दोनों उठे, got to get going. The older man said, अभी वो जाने लगे. उन्होंने क्या कहा, the younger man turned to me, जो नौजवान था वो मेरी तरफ मुड़ा. If you want to pick cotton, we could maybe get you on. अब वो कहते हैं अगर तुमने कॉटन पिकिंग करनी यानी कपास चुननी है तो तुम हमारे साथ चल सकते हो. They shared their work. उन्होंने अपना काम भी उसके साथ शेयर किया. उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 2-4 दिन और अच्छी रोटी खा लेंगे और हमें अच्छे कपड़े मिल जाएंगे. But even then they offered them. This is purity. This is sacrifices. This is care. This is what the writer likes about the family. That they are so pure, so innocent, and they are not at all materialistic, and they did not even care to think about. He could be a robber भी हो सकता था कोई, but they offered him their food and they offered him even their work as well. So, no, I got to go along. Thanks for breakfast. अब उसने शुक्रिया अदा किया है. The old man waved his hand in negative. Negative means bye bye करते हैं ना, टाटा. Glad to have you. उन्होंने कहा खुशी हुई आपसे मिलके. I walked away together. The air was blazing with light in the eastern skyline and I walked away down the country. अब वो चल पड़े दोनों के रास्ते. अब वो भी चला पड़ा, वो अपनी जॉब पे चले गए और ये अपने रास्ते. That's all. यही सब कुछ था. This is the story. This is the incident. This is the meeting, and that was the breakfast he had once in his lifetime with the family of pure heart of villager who were living in a very difficult times. But even then, they shared their meal with the writer. I know, of course, some of the reason why it was pleasant, but there was some elements of there were some element of great beauty there that makes the rush of warmth when I think of it. कहते कुछ ना कुछ तो इसमें elements हैं जो कि मुझे इसमें happiness जो है वो देते हैं. So come to the moral of the story. अब हमने स्टोरी पढ़ ली है. दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी. व्हाट डिड वी लर्न? दैट कंटेंटमेंट इज ब्लेसिंग. कंटेंटमेंट क्या होती है? कनात. कनात हमेशा आप जो आपके पास है आप उसका शुक्र अदा करें. दिस इज अ ब्लेसिंग. दे डिड नॉट हैव इनफ बट दे वर कंटेंटेड. दे वर हैप्पी विद दैट. देयर वाज नो अफेक्टेशन, लस्ट और मटेरियलिज्म इन देम. कोई बनावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मटेरियलिज्म नहीं, कोई लालच नहीं है. And that is what makes your life a very contented and happy life. So the writer learned the meaning of real happiness, and that happiness comes from sharing. आप शेयर करते हैं तो आपको happiness मिलती है. आप सिर्फ अपने पास संभाल के रखते रहें, चाहे वो कुछ भी हो. बांटने से चीज बढ़ती है, कभी खत्म नहीं होती. सो शेयरिंग इज द रियल हैप्पीनेस. सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, हमेशा शुक्रगुजार रहें. एंड देट कहते हैं ना, जो फलदार दरख्त होता है वही झुका हुआ होता है, जिसके पास इल्म होगा वही आजिज होगा. सो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड जो है हमें यहाँ पे मिलता है. नो कंप्लेन, नो कैरेक्टर इज कंप्लेनिंग एट ऑल. नाइदर द फादर, द मदर, कोई भी कंप्लेन नहीं कर रहा. all of them are so thankful to God and all of them are so satisfied and all of them are so contented or they're so happy with their life. So we learn that honest living, they are living a very honest life. ठीक है, ये नहीं हम इससे छीन लिया उससे छीन लिया. प्योर लाइफ, सिंपल लिविंग है. 12 दिन का काम उन्होंने किया, बट दे आर लिविंग अ वेरी ऑनेस्ट लाइफ एंड दे आर नॉट सेल्फिश एट ऑल. दैट्स व्हाई दे ऑफर्ड अ वर्क ऑफ cotton picking to the author as well. So comes to the questions. That is the last part of
our today's lecture, and that is what qualities of the cotton pickers does the writer highlight in the story. कौन सी qualities हैं ये आपने अब इसकी assignment तैयार करनी है और उन questions को तैयार करना है. Describe the main theme of the story breakfast, ये भी आपने तैयार करना है. So these are the 2 questions and this is enough for today. Hopefully आपको जो है सब समझ आ गया होगा और किसी किस्म की confusion नहीं होगी. Okay जी, see you tomorrow. Have a good day and Allah Hafiz.